غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا چھٹا روز گزشتہ 5 روز میں 112 افراد کی شناخت کی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق 85 افراد کو ہولڈنگ کیمپ لایا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں غیر قانونی رہائش پذیر غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا چھٹا روز ہے۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے احمر خان سے۔ احمر، آگاہ کیجیے گا۔ ملتان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف ملتان پولیس اور ضلع انتظامیہ کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ آج چھٹا روز ہے۔ چھٹے روز بھی ملتان پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ مختلف تھانوں کی حدود میں کریک ڈاؤن جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت ہولڈنگ سینٹر میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے اب تک گزشتہ 5 روز میں 112 افراد کی جو ہے وہ شناخت کی گئی ہے۔ 112 افراد میں سے 85 افراد کو جو ہے یہاں ہولڈنگ سینٹر میں جو ہے وہ منتقل کیا گیا تھا۔ حراست میں لینے کے بعد جو ہے ان کا تمام تر ڈیٹا جو ہے وہ ویریفیکیشن ہونے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے حراست سے رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک جو شہری ہے جس کی شناخت جو ہے وہ اسکندر نامی شخص ہوئی ہے، وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کلیئر نہیں کر سکا۔ ایف آئی اے کی ٹیمیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ٹیمیں جو ہیں وہ یہاں ہولڈنگ سینٹر میں موجود ہیں، جو تمام تر انتظامات کو جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں۔ جو بھی غیر قانونی طور پر افغانی جو پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے لے کے آیا جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے اس کا ڈیٹا جو ہے ویریفیکیشن کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تک جو ہے وہ 85 جو غیر قانونی طور پر افغانی ہیں ان کو یہاں ہولڈنگ سینٹر میں جو ہے وہ لے کے آیا گیا۔ 112 افراد کی جو ہے وہ شناخت کی گئی ہے، جس میں سے جو ہے 85 افراد کو جو ہے ہولڈنگ سینٹر سے جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ایک سکندر نامی جو شخص ہے جو غیر قانونی طور پر یہاں ملتان میں مقیم تھا، اس کو جو ہے وہ حراست میں لے کر جو ہے وہ اس وقت ہولڈنگ سینٹر میں رکھا ہوا ہے۔ آج جو ہے وہ جب ہماری پولیس سے مقام سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آج جو ہے وہ سکندر نامی 24 سالہ شخص کو جو ہے نزدیکی بارڈر کے ذریعے جو ہے وہ افغانستان منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہولڈنگ سینٹر میں تمام تر انتظامات کے حوالے سے بات کروں تو تمام تر انتظامات جو ہیں وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے مکمل ہیں۔ پولیس کی جانب سے 180 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ تعینات کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان پولیس کی جانب سے مختلف 14 اور 15 تھانوں کی حدود میں جو ہے وہ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے غیر قانونی طور پر افغانیوں کو حراست میں لینے کے حوالے سے۔ اب تک جو ہے وہ ٹوٹل میں ملتان شہر کی بات کروں تو 300 سے زائد افغانی شہری جو ہیں وہ یہاں پر ملتان شہر میں مقیم ہیں، جن کو جو ہے وہ حراست میں لینے کے لیے جو ہے ملتان پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب تک جو ہے وہ 112 افراد کی جو ہے وہ شناخت کی گئی ہے، جس میں ایک جو شہری ہے وہ افغانی وہ اپنی شناخت جو ہے وہ مکمل نہیں کروا سکا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کے حوالے سے بات کریں تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں ہولڈنگ سینٹر میں۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک جو سکندر نامی شخص ہے اس کو مہمان نوازی کے طور پر جو ہے وہ یہاں پر رکھا ہوا ہے، اس کو تمام تر اس کی دیکھ بھال بھی کی جا رہی ہے۔ میں ہولڈنگ سینٹر میں بات کروں تو یہاں پر میڈیکل کیمپ، ریسکیو کی ٹیمیں، سول ڈیفنس کی ٹیمیں اور پولیس کی نفری جو ہے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان کو جو ہے وہ جو غیر قانونی طور پر افغانی ایک سکندر نامی 24 سالہ شخص ہے اس کو مہمان نوازی کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ 3 ٹائم کا اس کو کھانا بھی یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اس کو تمام تر میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ بھی بر وقت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق جو ہے آج جو ہے سکندر نامی شخص کو نزدیکی بارڈر کے ذریعے جو ہے وہ افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان پولیس کی جانب سے گزشتہ 5 روز میں 112 افراد کی شناخت کی گئی ہے۔ تاحال جو ہے وہ ابھی بھی ملتان پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر بھر میں کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ غیر قانونی طور پر افغان مقیم جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جب ہماری پولیس حکام سے بات ہوئی تو پولیس حکام کا یہی کہنا ہے کہ جب تک جو ہے وہ غیر قانونی طور پر افغانی جو ہے شہر میں مقیم ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا جب تک وہ گرفتار نہیں ہو جاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی جو ہے وہ بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ان کو جلد از جلد جو ہے پولیس حکام کا یہی کہنا تھا کہ ان کو حراست میں لے لیا جائے گا اور 10 دن کا یہاں پر قیام ہوگا جہاں ان کو جو کھانا پینا اور ان کے یہاں پر دیکھ بھال جو ہے وہ کی جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے یہاں سے ہولڈنگ سینٹر سے جو نزدیکی بارڈر کے ذریعے جو ان کو افغانستان جو ہے منتقل کر دیا جائے گا۔ جی، نزدیکی بارڈر سے افغانستان منتقل کر دیا جائے گا۔ بہت شکریہ احمر خان آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں میونسپل کارپوریشن مظفر گڑھ کی مبینہ نااہلی، مدرسے کے باہر سیویج کے پانی سے راہگیر پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ تبدیل ہو گیا مگر شہر کی حالت نہ بدلی۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے عامر ڈوگر سے۔ عامر، بتائیے گا انتظامیہ کی جانب سے کیا موقف سامنے آیا ہے؟ جی بالکل، میونسپل کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے مظفر گڑھ کے شہری جو ہیں وہ اذیت میں مبتلا ہیں۔ اسکول جانے والے بچے ہوں، عام شہری ہوں، یہاں تک کہ مدارس کے طلبہ ہوں، انہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے چیف سینیٹری انسپیکٹر کی
तब्दीली के बावजूद हालात जो है वो ठीक नहीं हो सके। कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो इस वक्त हम मोहल्ला हयात नगर में मौजूद हैं और गलियों का पानी जो है वो सीवरेज का गंदा पानी मदरसे के ये जो तलबा और तालबात हैं इनके लिए मसला बन चुका है, क्योंकि ये इनका कहना है कि कपड़े इनके नापाक हो जाते हैं। जो मदरसे के मुतवल्ली हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पे इंतजामात को देखते हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। क्या कहते हैं सर, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाली कितने अरसे से पानी खड़ा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तकरीबन कोई 1 साल से यही प्रॉब्लम है। हम 12 दफ़ा म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर डीसीओ साहब से ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि गली का प्रॉब्लम ये है कि मेन रोड के ऊपर से जो मेन होल पड़ा है वहाँ से पानी बंद हो जाता है और ये निकासी इसको अब 1 महीना हो गया है। आप देख रहे हैं कि ये जामा मस्जिद है, मदरसा है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ तलबा बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ बंदा गुजर ही नहीं सकता। ये गटरों का और मेन होल का पानी है, यहाँ से क्या किया जाए? हमारी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है, मेहरबानी करें मेन रोड के ऊपर जो सीवरेज जा रही है उसको वहाँ से खोलें ताकि ये मसला हल हो। ये मेन गली है, इसको लिशारी वाली गली कहते हैं, मोहल्ला हयात नगर, और मदरसे के बच्चे और ये पढ़ने वाले और जामा मस्जिद जुमा में आने वाले नमाज वाले यहाँ से कैसे गुजर के आए? ये तो इंतज़ामिया की बिल्कुल नाअहली है, नाअहली का सबूत है। उन्हें चाहिए कि वो कमेटी वाले बंदे भेजते हैं, वो 1-2 दफ़ा यहाँ देख के चले जाते हैं। बहरहाल हमारी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें इसको फिलफौर खोला जाए ताकि आने वाले लोगों के लिए, नमाजियों के लिए, मदरसे के तलबा के लिए ये सहूलत पैदा हो। यहाँ जुमे के रोज़ भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जो इलाका मकीन जुमा नमाज अदा करने के लिए आते हैं। इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए और इस गली को जाए। जी आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया। महंगाई के सताए ताजिर बिजली और गैस के निर्खों से मजीद परेशान हैं। मुल्तान में कपड़े की होलसेल मार्केटों में वीरानियों के डेरे हैं। ताजिर कहते हैं चंद साल कबल खरीदारों का रश होता था, जवाब नहीं है। 40,000 माहाना कमाते हैं जिसमें गुजारा करना नामुमकिन हो चुका है। तफसीलात जानेंगे सलमान समीर से। जी सलमान। जी बिल्कुल, मुल्तान के जो ताजिर हैं उनके मसाइल जो हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। बढ़ते हुए बिजली के रेट्स और गैस के बढ़ते हुए रेट्स और साथ साथ डकैतियों में जो इजाफा हुआ है उससे जो है ताजिर जो है वो बेहद ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लॉथ मार्केट, होलसेल क्लॉथ मार्केट है ये मुल्तान की, और ये 14 नंबर चुंगी पर वाक़या है मार्केट। यहाँ पर भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि जो मार्केट है वो बिल्कुल खाली नज़र आ रही है, जहाँ पर ग्राहक जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा। जो दुकानदार हजरात हैं वो बेहद परेशान हैं इसी हवाले से। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या मुश्किलात का सामना देख रहे हैं कि मार्केट्स जो हैं वो खाली हैं और बढ़ते हुए डकैतियाँ आ रही हैं, बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, गैसों के नर्ख बढ़ रहे हैं, क्या कहें? ये देखें, आप देख रहे हैं इस टाइम मार्केट की क्या पोजीशन है, सन्नाटे हैं। बिजली बिल, सुई गैस का बिल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, अवाम अपने घर के खर्चे ही नहीं चला पा रहे हैं। अब बिजली और गैस बढ़ने की वजह से हमारी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी मिलों से हमें आ रही है, ग्राहक में कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। समझ रहे बात को कि यूँ समझ लें कि हमारा कारोबार 10 पैसे नहीं रह गया है। समझ रहे हैं? अब ये बताएं कि 30-40 हज़ार रुपये महीना, हमारी जो मुल्क की ज़्यादातर आबादी है वो 30-40-50 हज़ार रुपये महीना कमाने वाली है। उनके बच्चों की फ़ीसें हैं, बिजली के बिल हैं, घर के किराए हैं, खाने पीने का राशन कितना महंगा हो चुका है। वो लोग ये अपने घर का राशन नहीं पूरा कर पा रहे। अच्छे भले सफ़ेद पोश लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। बात समझ रहे हैं? और रही सही कसर ये देख लें आप कि भूख और अफलास की वजह से आप देखें किस कदर वारदातें बढ़ चुकी हैं, राजधानियाँ बढ़ चुकी हैं। आज आप सड़क पे अपनी मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर सकते, 5 मिनट बाद आते हो तो मोटरसाइकिल ही गायब हुई पड़ी है। आप देखें किस कदर डकैती और राजधानी की वारदातें शुरू हुई पड़ी हैं। महंगाई ने भाईजान इंसान का जीना मुहाल कर दिया है। इस टाइम सफ़ेद पोश आदमी पिस चुका है बुरे तरीके से। जो दुकानदार हजरात हैं वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो ग्राहक है वो ना होने के बराबर है, जबकि होलसेल मार्केट के अंदर जो ग्राहक था वो बहुत हुआ करते थे, मगर अब जो है बढ़ती हुई महंगाई से दुकानदार बहुत ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, रहीम यार खान के तहफ़्फ़ुज़ का बड़ा मंसूबा इंतजामिया की नाअहली की नजर हो गया। सीसीटीवी कैमरे गैर फाल, शहर शोरों के रहमो करम पर मुनासिब देखभाल न होने के बायस तमाम कैमरे बंद हैं। अहम सड़कों चौराहों पर निगरानी का अमल रुक गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम। पुलिस ने जराइम की रोकथाम चोरियों को रोकने के हवाले से एक बड़ा मंसूबा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तावन से शुरू किया था। सीसीटीवी कैमरे का नस्ब किया गया था पूरे शहर में, जहां पर अहम चौराहे, चौक, सड़कें, उन पर ये सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए थे। 122
कैमरे नस्ब किए गए थे, जिनमें से 18 कैमरे ऐसे थे जो 360D मूव करते थे और बाकी जो कैमरे थे वो फिक्स कैमरे थे। बड़ा मंसूबा था। जब ये काम शुरू किया इस मंसूबे के तहत, तो जो चोरी की, डकैती की या जराइम की वारदातें होती तो उनको तलाश करने में इन CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से मदद हासिल की जाती थी। मगर ये मंसूबा दीगर मंसूबों की तरह आहिस्ता आहिस्ता खटाई में पड़ता गया। अब रहीम यार खान शहर में जो बड़ा मंसूबा था, जो चोरी की वारदात होती थी तो उसको तलाश करने में बड़ी मददगार साबित होता था, अब नहीं होता, क्योंकि रहीम यार खान का ये मंसूबा अब नाकाम होता जा रहा है, क्योंकि इसके मुकम्मल तौर पर मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये कैमरे अब काम नहीं कर रहे। कोई एक कैमरा भी काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कोई चोरी डकैती की वारदात हो जाती है तो ना CCTV फुटेजेस मिलते हैं, ना उसकी तलाश होती है आगे। पहले इस मंसूबे की वजह से CCTV कैमरों की मदद के साथ बहुत सारी चोरियां, डकैतियां और जराइम की वारदात जो हैं वो तलाश की गई थी, कलाकुमा किया गया था। अब ये पोजीशन है, ये CCTV कैमरे मुसलसल तौर पर बंद हैं और जिसकी वजह से ना तलाश हो पा रहा है, ना उनका मामला हो रहे हैं। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तावन से मिलियन रुपीस का मंसूबा था जो आवाम की फलाह के लिए जराइम को रोकने के हवाले से शुरू किया गया था, सिर्फ मेंटेनेंस ना होने की वजह से। अब ये बंद है, किसी कैमरे का चार्जर खराब है, कहीं पर केबल डैमेज है, मगर मुकम्मल तौर पर मेंटेनेंस ना होने की वजह से अब ये मंसूबा खतरनाक हद तक ये जराइम की जो बढ़ रही है रहीम यार खान में, चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी एक कत्ल की वारदात हुई थी, उसमें भी CCTV फुटेज को देखा गया, मगर CCTV फुटेजेस ना मिलने की वजह से अभी तक वो नामालूम कत्ल भी नहीं मिल रहा। ये मंसूबा अब जो आवाम की फलाह के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिलियन रुपीस खर्च किए थे, सिर्फ प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से, पुलिस की प्रॉपर देखभाल ना होने की वजह से जो कंट्रोल रूम बनाया गया था, उसकी वजह से ये मंसूबा अब खतरे का बायस बनता जा रहा है। और चोरी डकैती की जो वारदातें हो रही हैं इसकी वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कोई रोक और थाम नजर नहीं आती। जी आसिम, बहुत शुक्रिया। मियांवाली में स्मोक के खात्मे के लिए महकमा माहौलियात मुतहरिक। इंस्पेक्टर माहौलियात इमरान मलिक का कहना है स्मोक के हवाले से सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया के साथ मिलकर 80 भट्टा इजात का मुआयना किया गया। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी मुंतकिल ना होने वाले 20 भट्टों को सील किया गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे अख्तर वजाज से। जी अख्तर, बताइएगा स्मोक के हवाले से मजीद क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं? जी बिल्कुल पंजाब भर की तरह मियांवाली में भी स्मोक खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है। इस हवाले से महकमा माहौलियात जो है क्या इकदाम कर रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर माहौलियात इमरान मलिक साहब। आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा स्मोक के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? सर इस साल जैसे कि पिछले सालों की तरह स्मोक पे हमारी वर्किंग स्टार्ट है और ज़िली इंतज़ामिया के साथ हम भट्टा जात और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं। अगर इसमें मैं मज़ीद तफसील से बताऊं तो अब तक हम तकरीबन 80 के करीब भट्टे विजिट कर चुके हैं, जिनकी टोटल तादाद 93 के करीब है। इसमें हम भट्टों के खिलाफ जो उनकी वायलेशंस कर रहे थे सर, उनको हम जुर्माने कर चुके हैं, जिसकी अमाउंट तकरीबन 10 लाख है सर। इसके साथ साथ 11 के करीब FIRs हैं और 20 के करीब भट्टों को जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे अमल दरामद नहीं कर रहे या उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर सके, उनको हमने बंद किया हुआ है। अच्छा इमरान साहब ये बताइएगा कि म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में जो खुलेआम कचरे को आग लगा दी जाती है, उसके बाद काश्तकार जो हैं फसलों की बाकियात को खुलेआम आग लगा देते हैं, इस हवाले से क्या महकमा ज़राअत और म्यूनसिपल कमेटी के साथ भी कोऑर्डिनेशन जारी है? इस हवाले से क्या इक़दाम? जी सर बिल्कुल, इसमें हम महकमा ज़राअत के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं और उनके अफसरान के साथ जो स्टबल बनने की कार्रवाई है उनके साथ हम कर रहे हैं। और अब तक मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ पे भी हमें कोई बनने की शिकायत आती है तो इसके लिए बाकायदा एक थर्मल एनोमलीज हमारे EP हेडक्वार्टर की तरफ से क्रिएट की जाती है, तो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भेज देते हैं और वो अपनी बेहतरीन कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर जो हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के इंचार्ज हैं उनको भी हम लेटर जारी कर चुके हैं कि हमारे म्यूनिसिपल कमेटी का जो सैनिटरी स्टाफ है उनको पाबंद किया जाए कि वो किसी भी सॉलिड वेस्ट को खुलेआम आग ना लगाए, ताकि हम स्मोक को कंट्रोल कर सकें और अपने माहौल को बेहतर बना सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि स्मोक के तदारुक के लिए महकमा माहौलियात मियांवाली जो है मुतहरिक है और इक़दाम जा रहे हैं। जी अख्तर मचास, बहुत शुक्रिया। मियां सोनू में वापदा इंतजामिया किसी बड़े सानहे के मुंतज़िर बिजली की लटकती तारों से अहले मोहल्ला की परेशानी बढ़ गई है। कहते हैं मुतादिद बार दरख्वास्तों के बावजूद सुनवाई नहीं हुई है। मज़ीद जानेंगे गुलाम हैदर से। गुलाम बताइएगा शहरियों की जानिब से क्या मुतालबा किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मियाँ चन्नू की सब तहसील तुलंबा के मोहल्ला छावनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर वापदा की नाहली लापरवाही गफलत की वजह से बिजली की लटकती तारें ज़मीन को टच हो रही हैं। ये लटकती तारें किसी बड़े साने को दावत दे रही हैं। इस लटकती तारों की वजह से अहले मोहल्ला शदीद परेशान है। इस वक्त मेरे साथ अहले मोहल्ला मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। आप हमें ये बताइएगा, इस लटकती तारों की वजह से आप किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं? काफ़ी मुश्किलात है, काफ़ी घरों में बिल्कुल नीचे है छत के साथ, 2-3 बच्चियों को शार्ट लगी भी है, ठीक है, और बच्चे भी छत पे चढ़ते हैं, उनका भी खतरा है। जब बारिश आ जाती है वैसे ही घर में रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इनका कोई हल किया जाए। जो भी आता है हम उनको कहते हैं, कोई सुनता नहीं हमारी। वापता वालों को बोला है, वो बोला है कि सड़क बनेगी देखेंगे, ठीक है। जो वोट लेने वाले आते हैं उनको भी कहते हैं, वो भी कहते हैं जी इंशाल्लाह करते हैं, तो कोई भी नहीं हमारी सुनता। हम गुजारिश यही है कि इनका हल करें, मेन सड़क पे जाएं। इस वक्त हमारे साथ एक और मोहल्लादार भी मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं। सर, आप हमें इस तारों के हवाले में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि तारें नीवी हैं, छत हमारी थोड़ी ऊंची हो गई हैं, तो मोहल्ला हमारा काफ़ी ऊंचा होगा। इस वजह से जब बारिश आती है तो छतों में करंट आ जाता है और घर में भी करंट आ जाता है, तो इस वजह से फिर सारे को करंट लगता है। तो मेरा नजर ये कि हमारे परसों एक बाबे को शार्ट लगी इधर ही, बेचारा बारिश आई थी कुछ दिन पहले, तो छत पे कोई सामान उतारने गए तो शार्ट लगी है, उससे मसला बना है। तो यही वजह से कि मेन रोड बन रहा है, मेन रोड पे तार लेने तो हमारे वजह से बहुत बेहतर होगा। और जो ये तारें नीचे लटक रही हैं, आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे कि अक्सर तारें नीचे लटक रही हैं, उनको बच्चे को पकड़ता है बारिश में, पता नहीं उनमें करंट है कि नहीं है, इस बार हमें नहीं पता। जब बारिश आती है बच्चे पकड़ते हैं, आगे पीछे मसला बनता है, तो इस वजह से मसला बनता है। तो गुजारिश यही है कि इन तारों को कहीं और मेन रोड पर क्रॉस किया जाए। जब हमारी अहले मोहल्ला से बात हुई तो उनका कहना कि हमने बारहा मरतबा वापदा वालों को कंप्लेन भी की है, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा। लिहाजा हमारी आला हुकाम से मुतालबा कम से कम इस तार को ऊंचा करवाया जाए ताकि हमारे बच्चे महफूज रह सकें। जी हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार है। स्टेशन पर आए मुसाफिर इंतजार की अजियत में मुब्तला। खैबर मिल 1 तेज काम 2000 एक्सप्रेस 2 घंटे ताखिर का शिकार है, जबकि शालीमार एक्सप्रेस की बात की जाए तो 2 घंटे, कराची एक्सप्रेस 1.5 घंटे ताखिर का शिकार है। ट्रेन के मजीद स्केड्यूल के हवाले से मजीद जानेंगे राना बिलाल से। राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। बात की जाए ट्रेनों के हवाले से तो कोई एक ऐसी ट्रेन नहीं जो 1 घंटे से कम ताखीर का शिकार हो। शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल में जो है पेशावर था कराची जाने वाली खैबर मेल जो है वो तकरीबन 1 घंटा ताखीर का शिकार है। इसी तरह कराची था रावलपिंडी जाने वाली तेज़ गाम 2 घंटे ताखीर का शिकार है, और कराची था हवेलियां जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस और लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस भी जो है वो 2 घंटे ताखीर का शिकार है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर भी मौजूद हैं जो स्टेशन पर आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कब से स्टेशन पर वेट कर रहे हैं? हैदराबाद जा रहे हैं, बाहुद्दीन जिक्रिया में 1-1.5 घंटे लेट है तकरीबन। उसके अलावा 1-1.5 घंटा में वैसे ही हो गया है। अब ये निज़ाम अच्छा होना चाहिए क्योंकि रेलवे ट्रैक हमारे अच्छे नहीं है, यहाँ पे वॉशरूम की सहूलत अच्छी नहीं है, वेटिंग एरिया अच्छा नहीं है। बंदा है अब परदेश में आ रहा है और इतना लेट हो रहा है और किसी चीज़ की सहूलतें नहीं है, तो ये होनी चाहिए। अब यह है कि बंदा है फिर बैठा बैठा परेशान भी होता है, तो ये होना नहीं चाहिए। तो है कि सहूलियत होनी चाहिए बंदे को, तो मिलनी चाहिए। मुल्तान रेलवे की जो इंतज़ामिया है उससे यही मुतालबा किया जा रहा है मुसाफिरों की जानिब से, ये जो बुनियादी सहूलियात हैं ये इसको जो है वो होनी चाहिए स्टेशन पर, ताकि जो मुसाफिरों को कई घंटे की अजियत, इसके साथ साथ ट्रैक जो है रेलवे का वो भी काफ़ी अरसे से जो है वो उसको चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता, जिससे आए रोज़ जो है वो हादसात होते हैं ट्रेनों के, उस चीज़ का भी मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी तरफ स्टेशन पर जो बुनियादी सहूलियात है उसको बेहतर करने का और जो ट्रेनों का शेड्यूल है उसको बेहतर करने का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में बिजली के चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बिजली चोरी करने वाले अनासर के खिलाफ 9601 हो गई। 248 ताजिर भी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। ऑपरेशन में 6000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। मुख्तलिफ थानों में कुल 9277 मुकदमा दर्ज हुए। 63 करोड़ से ज्यादा जुर्माना आयद हुआ। 31 करोड़ से ज्यादा वसूल किया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है।
बिजली चोरी करने वाले अनासिर की तादाद 9,601 हो गई है, जबकि 248 ताजिर भी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। ऑपरेशन में 6,000 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। मुख्तलिफ थानों में कुल 9,277 मुकदमात दर्ज हुए। 63 करोड़ से जायद जुर्माना आयद हुआ। 31 करोड़ से जायद रिकवरी की गई। वसीम मुल्क में मैपको टीमें बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरिक। 2 माह में 50 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 35 लाख रुपए से जायद जुर्माना आयद किया। 28 लाख की रिकवरी की गई है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मिर्जा जमील से। जी मिर्जा। हम इस वक्त मौजूद हैं मैपको सब डिवीजन कस्बा मॉडल में, जहां निगरान हुकूमत और मैपको चीफ की हिदायत के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ताहम यहाँ पर हम मौजूद मैपको सब डिवीजन कस्बा मॉडल के एसडीओ शेख बिलाल साहब से जानते हैं कि वो अब तक 2 माह के अंदर उन्होंने कितनी हिक कार्रवाई की है, कितने बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज की हैं, करवाई हैं और कितने जुर्माने आयद किए। जी आप बताएंगे अब तक रिकवरी क्या रही मैपको सब डिवीजन कस्बा मॉडल की? जी, मैपको कस्बा मॉडल सब डिवीजन में 2 माह के मुख्तसर से अरसे में 50 से जायद बिजली चोरों को पकड़ा है। सब पर FIR दर्ज हुई है, सबको जुर्माना हुआ है और टोटल हमने इन 50 कंज्यूमर्स को 35 लाख रुपए जुर्माना किया है, जिसमें से 27 लाख रुपए अब तक रिकवर हो चुके हैं। मैपको कस्बा मॉडल सब डिवीजन में डे चेकिंग, नाइट चेकिंग इन 24 आवर्स हमारी जो टीम्स हैं वो चेकिंग के लिए फील्ड में मौजूद होती हैं। इस सिलसिले में मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके इलाके में अगर आपके नोटिस में ये चीज़ आती है कि कोई बिजली चोरी कर रहा है तो उसकी इतला फौरन मुझे दें, मैं फौरन उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। जी, एसडीओ साहब का ये कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये जब तक क्लियर नहीं होती कार्रवाई की जा रही। ताहम उन्होंने शहरियों से भी गुजारिश की है कि कहीं भी आप कोई ऐसी देखें बिजली चोरी के हवाले से तो वो जरूर आगाह करें। जी, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान तालीमी बोर्ड का अहसन इक़दाम। बोर्ड मुलाजमीन के ज़ेर तालीम बच्चों के लिए अच्छी खबर है। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस बोर्ड मुलाजमीन के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया गया है। इस पर मजीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा सुहिरा तारिक। जी सुहिरा, आगाह करें। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट पहला सालाना इम्तिहान 2023 के नताइज की बिना पर बोर्ड मुलाजमीन के बच्चों को जिन्होंने इम्तिहान पास किया है स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया है। कायदे आज़म स्कॉलरशिप के तहत 20 जो तलबा और तालिबात हैं जो कि बोर्ड मुलाजमीन के बच्चे हैं उनको इन स्कॉलरशिप्स के लिए जो है वो मुंतखब किया जाएगा। वो बोर्ड मुलाजमीन जो कि हाजिर सर्विस हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके जो बच्चे हैं उन्होंने इंटरमीडिएट सालाना इम्तिहान 2023 में शिरकत की थी और अच्छे नंबरों से पास हुए थे, वो स्टूडेंट्स 25 नवंबर तक अपनी दरखास्तें अपने रिज़ल्ट कार्ड के हमरा बोर्ड ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। 25 नवंबर जो है वो आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है, जिसके बाद दरखास्तें जमा करवाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अहल साबित नहीं हो सकेंगे। ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड के अलावा जो स्टूडेंट्स रिज़ल्ट कार्ड हासिल करना चाहते हैं, जिनके पास इस वक्त रिज़ल्ट कार्ड मौजूद नहीं है और वो दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं, वो बोर्ड के फैसिलिटेशन सेंटर में आकर अपना रिज़ल्ट कार्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो हैं 20 स्टूडेंट्स उनको मुंतखब किया जाएगा, जिसमें वो स्टूडेंट जिन्होंने मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देना है वो इस स्कॉलरशिप के अहल नहीं हो सकेंगे। जी सुहेरा, बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे एक और छोटा का। म्यूनसिपल सर्विसेज में बेहतरी के लिए इक़दाम जारी। जिना कॉलोनी की सिवेज और नकासियाब का दरीना मसला हल कर दिया गया। चीफ ऑफिसर जवादुल हसन ने अमले के हमरा नाले की सफाई का मुआयना किया। उनका कहना था कि अमले की 22 दिन मुसलसल मेहनत से काम मुकम्मल किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राना मोहम्मद सलीम से। जी सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी कोटशुटा की जानिब से शहरियों को सहूलियात फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है और इस हवाले से जिना कॉलोनी का जो डिस्पोजल का देरीना इशू था वो भी जो है आज हल कर दिया गया है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कोटशुटा जवादुल हसन गोंदल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, एक देरीना मसला था, जिना कॉलोनी के डिस्पोजल का हल कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राना साहब बहुत शुक्रिया। उसमें मैं बताता चलूँ जी कि ये जो भुट्टा कॉलोनी और जिना कॉलोनी का जो डिस्पोजल है इसका चूँकि पानी नाले के ज़रिए ये है हमारे इस कसी तक आता था, लेकिन जब से ये नाला बना है और ये नाला जो है ये पूरा सिल्टेड था, इसका पानी कभी भी एंड तक नहीं आया था। जब से ये बना है
कई साल हो गए इसमें। इसकी तकरीबन 3500 फुट इसकी कोई लेंथ है। तो हमने अपना जो स्टाफ है उसको लगाया यहाँ पे। हमने तकरीबन 22 दिन तक हमारा स्टाफ काम करता रहा है और इसको हमने तमाम इसको डिसिल्ट किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी जो है ये वहाँ तक पहुँच जाएगा, जो आगे हमारा छोटा मिनी डिस्पोजल बना हुआ है। तो उसमें ऐसा है कि जो जब सर्दियों में, चूँकि रकबा आपको पता है आपके सामने काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्मियों में तो ये पानी हर वक्त लोगों को यूज़ के लिए चाहिए होता था, ज़मींदारों को, तो वो ले लेते थे। लेकिन सर्दियाँ जो ही आती थी पानी उस तरह लोगों को नहीं चाहिए होता था। तो उसमें क्या होता था कि पीछे डिस्पोजल बंद कर दिया जाता था और पानी शहर की गलियों में, और इसी तरह सर्दियाँ सारी जो है वो लोग हर वक्त इस सीवर के मसाइल का शिकार रहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से उसमें हमें जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इसी साहब बड़ा उन्होंने सपोर्ट किया और हर हवाले से ही। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिसिल्ट करने में भी कामयाब हो गए हैं और आगे से डिस्पोजल मिनी जो है वो भी इंशाल्लाह हम उसको विद इन 2 डेज़ उसको भी चला रहे हैं। और अब सर्दियों के जब भी ज़्यादा सर्दियाँ आएंगी तो इंशाल्लाह लजीज जो पानी है वो गलियों में नहीं खड़ा होगा और बाकायदा जो इसी नाले के ज़रिए हम कसी में फेंक देंगे। जी जी बिल्कुल, 3500 फुट से ज़ायद जो है सीवरेज लाइन की सफाई कर दी गई है 22 दिन की मेहनत से, और इसकी सफाई होने से जो है अब जिनाह कॉलोनी के जो देरीना मसाइल थे अक्सर जो है। सलीम, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।